Assalamu alaikum class. Good morning to all of you. This is Saeed Ahmed. Today we are going to discuss another very strong concept of object-oriented programming that is known as abstraction. Abstraction means the top view of the relevant object where we have interest, and we are hiding the irrelevant information which are not related with us. So let's see what we say in today's lecture. Whenever we are going to declare a class which is abstract class, we must use a keyword with the name abstract. Let's say we say human, a class human, so we must write abstract class human. We see later on an example what does this mean. It can have the abstract class may have both methods. One method which is known as the abstract method, and abstract method is a bodiless or without body method, while another method it may include, and that method is known as the concrete method or a regular method, which means it has a complete body. We see later on what does we means by the bodiless method and the bodyful method. A normal class, which is a regular class or a non-abstract class, it cannot have any abstract method, while an abstract class must have keep one thing in mind. Abstract class must have minimum one abstract method, while other may be concrete method, and never ever possible that an abstract class have all methods are concrete method. No, for example, we have four method in a class. One may be abstract method and three may be concrete method. All four methods are abstract methods. It's okay. An abstract class may have all abstract methods, no problem, it will work. But an abstract class never having the all methods are concrete methods. If all methods are concrete methods, then an abstract class becomes the concrete or the regular class. Okay, so let's see abstraction. Abstraction is a way to cope up with the complexity. For example, we have a principle of an abstraction. It only captures those details about an object where we have interest and which are relevant to the current perspective. Let's see, we are going to discuss with an example. Let's say Mr. Ali is a PhD student and he is also teaching the students of a BS program. So Mr. Ali having attributes, because Ali is the object of a class human. So Mr. Ali having attributes as well as the behavior. Now attributes, he has name, student roll number, year of study, CGPA, employee ID, designation, salary and age. Approximately 8 attributes he has, and same way he has 8 different behaviors which you can see: study, given exams, and so on. Now we are going to discuss the abstraction with respect to or with the perspective of the student point of view. So student's perspective says that student having a name, he she has a registration number, as well as he must have the year of study and he has CGPA. So these four attributes are related to the student perspective, while remaining four attributes do not have any relation with the student, so we are hiding these things. This is known as abstraction. Let's see in the behavior. In a behavior with respect to student perspective, so student studies, yes, he she gives exams and play sports, while they will never ever deliver the lecture, they will never ever develop the exam, or neither they take the exam. So remaining three or five at behaviors, they are not related to the students. That's why we abstract only three which we have important for us. Now see the teacher's perspective. Name, definitely teacher has name,
and he is employee, so he has employee ID, designation and salary. So in this case, student roll number, year of study, CGPA, they are not related with the teacher's perspective. That's why we do not cater them in the abstraction class. Now, if we talk about the behavior, so teacher delivers lecture, yes. Teacher develop exam, yes. Teacher take exam, while study, give exam and the play store, these features do not have any concern with the teacher perspective. That's why we only capture three, that is delivering the lecture, developing the exam, as well as taking the exam. Now let's see another example. If we talk about a cat, we can view a cat with a different perspective. One from a common perspective, students. Common perspective mean for a layman. आप लोग में या XYZ कैट को कैसे देखता है? कैट को देखता है भाई, कैट की 4 लेग्स हैं, कैट का एक टेल होती है, 2 कान होते हैं और उसके शार्प टीथ है। ओके, नो प्रॉब्लम, मैं एक कॉमन पॉइंट ऑफ व्यू से इन चीज़ों को कंसीडर करूंगा। बट अगर उसी कैट को हम किसी सर्जन के पास लेके जाते हैं, अगर कैट में कोई प्रॉब्लम फील हो रही है हमें, तो सर्जन इन चीज़ों को नहीं देखता। सर्जन देखेगा कि स्केलेटन से क्या लेना देना है, क्या किसी उस कैट के स्केलेटन में कोई प्रॉब्लम है, क्या कैट को किसी हार्ट में कोई उसके किसी उसको कोई हार्ट की प्रॉब्लम आ रही है, क्या कैट की किडनी में कोई प्रॉब्लम आ रही है, या कैट की स्टमक में कोई प्रॉब्लम है। तो यहाँ देखिए दोनों पर्सपेक्टिव है। ऑर्डिनरी पर्सपेक्टिव से हम उसकी लेग्स, टेल, उसके टीथ और उसकी ईयर्स को कंसीडर करते हैं, वाइल सर्जन पर्सपेक्टिव से हम स्केलेटन, उसके हार्ट, उसके किडनी और उसके स्टमक को देखते हैं। दिस इज नोन एज द एब्स्ट्रैक्शन। लेट्स सी अनदर एग्जांपल। अगर मैं एक कार की एग्जांपल लेता हूं, तो एक आम यूजर और एक ड्राइवर कार को इस कंडीशन में देखता है, अ वेल फर्निश्ड कंडीशन, कि उसके फीचर्स क्या हैं, उसका स्टीयरिंग पावर हो सकता है, उसकी विंडोज पावर हो सकती हैं, उसकी सीट कंफर्टेबल्स हैं, उसका एसी अच्छा चल सकता है, उसका इंटीरियर एंड एक्सटीरियर अच्छा डेकोरेटेड है, अच्छी फर्निशिंग है, अच्छी पॉलिश है, अच्छा कलर है, अच्छा कॉम्बिनेशन है कलर्स का। बट अगर इसी चीज़ को मैं इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं, तो एक इंजीनियर इन चीज़ों में इंटरेस्ट नहीं लेता। वो सिंपल जाके देखेगा भाई कि उसके किसी इंजन के पार्ट में क्या कोई फॉल्ट आ रहा है, क्या वहाँ कोई ऐसी अननोनेबल साउंड प्रोड्यूस हो रही है, या उसका कैपेसिटेंट कोई साउंड प्रोड्यूस कर रहा है, या उसका फ्यूल कंजप्शन कुछ ज़्यादा हो रहा है, या फ्यूल लीकेज हो रहा है। तो वो इन पर्टिकुलर एरियाज को जाके टारगेट करेगा रादर देन एक आम कॉमन इंसान के। दिस इज कॉल्ड एब्स्ट्रैक्शन। एब्स्ट्रैक्शन के एडवांटेजेस क्या क्या हो सकते हैं? इट सिंप्लीफाइज द मॉडल ऑफ by hiding the irrelevant details, as we saw in the previous example कि इंजीनियर किस में इंटरेस्टेड है और एक आम यूजर किस में इंटरेस्टेड है। सेकंड इसका क्या हो सकता है कि एब्स्ट्रैक्शन प्रोवाइड करता है द फ्रीडम टू डिफर इम्प्लीमेंटेशन डिसीजन बाय अवॉइडिंग द कमिटमेंट ऑफ डिटेल्स। लेट्स सी, वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट विद एन एग्जांपल। फॉर एग्जांपल, अगर हम एक एग्जांपल लेते हैं एक सुजुकी की या एक व्हीकल की, 4 व्हीकल की, तो उसमें ट्रक देखें, उसकी डिफरेंट शेप है, डिफरेंट फंक्शंस हैं, डिफरेंट एट्रीब्यूट्स हैं, डिफरेंट बिहेवियर्स हैं। कार देखें, डिफरेंट बिहेवियर है, डिफरेंट फंक्शंस हैं, डिफरेंट एट्रीब्यूट्स हैं। बस देखें, डिफरेंट है, सब कुछ है। हालांकि तीनों, ट्रक हो, कार हो या बस हो, तीनों को तीनों 4 व्हील के अंदर आते हैं। इसी तरह अगर हम एक इंसान की एग्जांपल लेते हैं, ह्यूमन इज अ ब्रॉड क्लास, लेकिन उसकी सब क्लास को अगर आप देखें, हर एक का बिहेवियर, हर एक का एट्रीब्यूट डिफरेंट होगा। लेट्स से डॉक्टर का बिहेवियर और एट्रीब्यूट डिफरेंट होगा, टीचर का एट्रीब्यूट एंड बिहेवियर डिफरेंट होगा, स्टूडेंट का एट्रीब्यूट एंड बिहेवियर डिफरेंट होगा, इंजीनियर का एट्रीब्यूट एंड बिहेवियर डिफरेंट होगा, किसी भी लॉयर का एट्रीब्यूट एंड बिहेवियर डिफरेंट होगा। दैट्स व्हाई दे ऑल हैव freedom to differ implementation decision by avoiding the commitments of the detail. So let's, over here we see the example. After that we are going to discuss the encapsulation. So first example of the abstraction class.
Over here you people can see we have, as I told you, कि कोई भी एब्स्ट्रैक्ट क्लास है अगर हम उसको डिक्लेयर करेंगे तो हम उसका एट्रीब्यूट यूज करेंगे एब्स्ट्रैक्ट। तो यू कैन सी हमारे पास ये एक एब्स्ट्रैक्ट एक कीवर्ड है, हमने एक एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड यूज किया। सेकंड हमने कहा कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर जो मेथड सॉरी डिक्लेयर किया जाएगा, अगर वो एब्स्ट्रैक्ट मेथड है तो उसकी बॉडी नहीं होगी। यहां आप देखें मैंने एक मेथड डिक्लेयर किया जिसका साथ मैंने कीवर्ड यूज किया एब्स्ट्रैक्ट, और उस मेथड को मैंने नाम दिया साउंड, और साउंड के मेथड को मैंने एट द एंड टर्मिनेट किया, जबकि रेगुलर मेथड टर्मिनेट नहीं होता। रेगुलर मेथड टर्मिनेट नहीं होता, आप किसी भी मेथड को जो कंप्लीट मेथड है उसको टर्मिनेट नहीं कर सकते। ये वो मेथड है, ये वाला मेथड जो है हमारे पास साउंड का, ये बॉडी लेस मेथड है, इसकी कोई बॉडी नहीं है। सो दिस इज कॉल्ड abstract, or in other words incomplete method. Now क्लास एनिमल के इस एब्स्ट्रैक्ट मेथड को मैं जाके उसकी सब क्लास में करता हूं। मैंने इस मेथड को यहां पे क्यों इनकम्प्लीट रखा, क्यों इंप्लीमेंट नहीं किया, उसकी रीजन मैं आपको आगे बता रहा हूं कि साउंड है, हर एनिमल की साउंड डिफरेंट है, इसीलिए मैंने एनिमल की टाइप के हिसाब से उसकी साउंड को इंप्लीमेंट करवाना है। लेट्स से वी टेक एन एग्जांपल डॉग। डॉग मेरे पास एक सब क्लास है जो एनिमल क्लास को एक्सटेंड कर रही है। एनिमल क्लास उसका पेरेंट क्लास है, और उस पेरेंट क्लास के अंदर ये एक मेथड है मेरे पास, और वो मेथड मेरे पास क्या था, साउंड, जो कि इनकम्प्लीट मेथड था। इस मेथड को अब मैं क्लास के अंदर इंप्लीमेंट करने जा रहा हूं, और मैंने यहां इसको इंप्लीमेंट किया और मैंने कहा यू कैन सी ओवर हियर कि मेरे पास ये जो साउंड है डॉग की वो वोफ है। वो क्या है, साउंड है मेरे पास, वोफ है। इसी तरह यहां देखें ये चीजें मैंने यहां इंप्लीमेंट की। वन मोर थिंग विच आई वुड लाइक यू टेल यू पीपल, और वो ये है कि किसी भी इनकम्प्लीट और एब्स्ट्रैक्ट क्लास की ऑब्जेक्ट नहीं बन सकती। वाइल प्रीवियसली हम हर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते रहे हैं, तो मेरे पास जो पेरेंट क्लास है वो इस वक्त एब्स्ट्रैक्ट क्लास है विद द नेम एनिमल, और जब यहां देखें मैंने आके ऑब्जेक्ट बनाया तो ऑब्जेक्ट मैंने डॉग का बनाया। डॉग मेरे पास कंप्लीट क्लास है जो कि चाइल्ड क्लास है और इनहेरिट कर रही है किसको, एनिमल क्लास को, तो मैंने उसका ऑब्जेक्ट बनाया। तो फीचर्स ध्यान में रखिएगा, कभी भी एब्स्ट्रैक्ट क्लास का फीचर नहीं बन सकता, ऑब्जेक्ट नहीं बन सकता। इसलिए नहीं बन सकता कि उसका कोई कंस्ट्रक्टर नहीं होगा, और कंस्ट्रक्टर ऑलवेज क्या बनाता है, ऑब्जेक्ट बनाता है। तो यहां आप देख सकते हैं डॉग इसका कंस्ट्रक्टर है क्लास डॉग का। इसी तरह मैंने एक और क्लास ली है और उस क्लास को मैंने नाम दिया कैट। कैट इज अनदर टाइप ऑफ द एनिमल, और वो भी उसी वाले पेरेंट क्लास, जो कि पेरेंट क्लास का एब्स्ट्रैक्ट मेथड था, उसका वो इनकम्प्लीट मेथड को इंप्लीमेंट करने जा रहा है, और वो जो साउंड प्रोड्यूस कर रहा है वो म्यू प्रोड्यूस कर रहा है। नाउ अब आपको क्लियर हो गया होगा कि मैंने पेरेंट क्लास के अंदर साउंड के मेथड को इनकम्प्लीट या एब्स्ट्रैक्ट क्यों रखा। अगर मैं वहां पे साउंड एक ही रख देता तो डॉग को भी वही इंप्लीमेंट करना पड़ता और कैट को भी, जबकि डॉग रियल लाइफ में डॉग और कैट की साउंड एक नहीं हो सकती। दैट्स व्हाई। सेकंड पॉइंट मैंने आपसे ये कहा था कि हमारे पास जो एब्स्ट्रैक्ट मेथड होता है वो बॉडीलेस होता है। तो अगर आप इस मेथड को देखें तो मेरे पास ये जो मेथड है, जो जो हमने मेथड, ये वाला मेथड जो हमने डिक्लेयर किया है, ये बॉडीलेस मेथड है। इसके बाद अगर आप इसका ये वाला मेथड देखें तो ये मेरे पास रेगुलर मेथड है। तो रेगुलर मेथड की आप बॉडी देख सकते हैं जो कि पैरेंथेसिस के अंदर है, और रेगुलर मेथड को कभी भी टर्मिनेट नहीं किया जाता। वाइल एब्स्ट्रैक्ट मेथड की कोई बॉडी नहीं है, कोई पैरेंथेसिस नहीं होते, ये बॉडीलेस होता है और इसको हमेशा टर्मिनेट किया जाता है। Let's see one more example. We are going to have one more example. और ये एग्जाम्पल है मेरे पास, एक एग्जाम्पल मैं ले रहा हूं और उस एग्जाम्पल को हम डिफरेंट एंगल के साथ थोड़ा डिस्कस करते हैं ताकि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। मेरे पास एक क्लास है उसको मैंने एब्स्ट्रैक्ट किया, वो क्लास को मैंने नाम दिया क्लास है। अगेन आई एम यूजिंग हियर कीवर्ड एब्स्ट्रैक्ट। इसके अंदर मैंने एट्रीब्यूट्स कॉल किए और मैंने नाम रखा, मैंने उसको एक नाम रखा। अभी इसे प्राइवेट क्या है थोड़ी देर के लिए आप इसको भूल जाएं, मैं इसको यहां से इरेज कर देता हूं। व्हाट इज प्राइवेट, जस्ट फॉरगेट अबाउट दिस। और मैंने इसको नाम रखा खान।
इसका एक एट्रीब्यूट है, दूसरा एट्रीब्यूट एज है। इसके अंदर देखिए मैंने दो मेथड डिक्लेयर किए हैं, वन विद द नेम डॉक्टर, सेकंड विद द नेम नर्स, एंड बोथ आर इनकम्प्लीटेड, और इन अदर वर्ड्स बोथ आर एब्स्ट्रैक्ट मेथड, दे डू नॉट एनी बॉडी, दैट्स व्हाई एट द एंड मैंने इनको टर्मिनेट कर दिया है। एक बात और, कभी भी किसी भी एब्स्ट्रैक्ट मेथड की कोई रिटर्न टाइप नहीं होगी, हमेशा वॉइड होगा। वाइल कॉन्क्रीट मेथड जो है वो वॉइड भी हो सकता है और वो एक स्पेसिफिक रिटर्न टाइप भी रखेगा। कीप दिस थिंग इन माइंड। अब इसी क्लास के अंदर मैं एक और कॉन्क्रीट मेथड डिजाइन कर रहा हूं। दो मेथड है, तीन मेथड है, एक है एमबीबीएस, एक है क्लिनिक और एक है चेकअप। अगर आप देखें एनबीबीएस मेथड देखें तो इसकी भी एक बॉडी है पूरी और इसको मैंने टर्मिनेट नहीं किया। इसी तरह अगर आप क्लाइंट के क्लिनिक के मेथड को देखें तो इसकी भी एक बॉडी है, यानी कंप्लीट हो रहा है ये मेथड। इसी तरह अगर आप चेकअप के मेथड को देखें तो इसकी भी एक कंप्लीट बॉडी है, ये मेथड भी कंप्लीट हो रहा है। तो इस क्लास ए के अंदर हमारे पास दो तरह के मेथड्स हैं, वन एब्स्ट्रैक्ट मेथड एंड सेकंड कॉन्क्रीट मेथड। मैंने आपको स्टार्ट में कहा था कि एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास सारे के सारे एब्स्ट्रैक्ट मेथड होल्ड कर सकती है, ट्रू, नो इशू। वाइल कभी भी एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास सारे के सारे कॉन्क्रीट मेथड नहीं कर सकती, नहीं रख सकती। अगर रखेगी तो उसकी नेचर चेंज हो जाएगी, फिर वो एब्स्ट्रैक्ट नहीं रहेगी बल्कि वो कॉन्क्रीट और नॉर्मल क्लास हो जाएगी। आप अपनी लैब में इसको परफॉर्म करके देखिएगा, लैब की क्लास में आप इसको डिस्कस करेंगे। यहां एग्जांपल आपके मैंने सामने रख दी है। अलबत्ता एक क्लास, एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास एब्स्ट्रैक्ट मेथड और कॉन्क्रीट मेथड दोनों के मिक्सचर्स को होल्ड कर सकती है। डिपेंड करता है, समटाइम ज्यादा एब्स्ट्रैक्ट मेथड हो और समटाइम ज्यादा कॉन्क्रीट मेथड हो, बट एब्स्ट्रैक्ट क्लास की शर्त, प्राइमरी कंडीशन लाजमी है कि उसके अंदर कम से कम एक मेथड एब्स्ट्रैक्ट होना चाहिए। अगर उसके अंदर एक मेथड एब्स्ट्रैक्ट नहीं है तो वो क्लास एब्स्ट्रैक्ट नहीं हो सकती। इट वुड बिकम द कॉन्क्रीट और द कंप्लीट और द रेगुलर क्लास। नाउ सी, मैं एक बी क्लास डिजाइन कर रहा हूं जिसको मैंने नाम दिया क्लास बी, यू कैन सी ओवर हियर। और इस पेरेंट है क्लास ए, और क्लास ए के अंदर मैं डॉक्टर को इंप्लीमेंट कर रहा हूं। सिंपल, यू कैन सी ओवर हियर, ये डॉक्टर एक मेथड था, यहां पर आप देख सकते हैं, जो कि इनकम्प्लीट और एब्स्ट्रैक्ट मेथड था, ये वाला। इसको क्लास ए के अंदर मैं इंप्लीमेंट करता हूं, तो मैं कहता हूं जी कि ही इज एन एक्सपीरियंस डॉक्टर। मेथड को हम इंप्लीमेंट किया, आप यहां देखें वही वाला इनकम्प्लीट मेथड यहां पर कंप्लीट हुआ विद अ बॉडी, तो बॉडी हो गई, और उसको मैंने मेन मेथड के अंदर आके कॉल कर लिया विद द हेल्प ऑफ ऑब्जेक्ट। यू नो इट हाउ टू डू दैट। अनदर क्लास हमने डिफाइन की क्लास सी, जो कि अनदर चाइल्ड क्लास है क्लास ए, जो उसकी पेरेंट क्लास है। इसके अंदर मैंने नर्स वाले मेथड को, जो कि आप ऊपर यहां देखें, हमारे पास ये जो नर्स सेकंड इनकम्प्लीट मेथड था, इस सेकंड इनकम्प्लीट मेथड को मैंने यहां पे इंप्लीमेंट किया, अब यहां पे देख सकते हैं। तो यहां हमने कहा जी कि ये नर्स वाला मेथड है और शी इज ऑन ड्यूटी। क्या कहता है जी, शी इज ऑन ड्यूटी, और इसको मैंने कॉल कर दिया। सो दैट ऑल अबाउट वाज योर एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस। अब दोबारा अगर हम लेक्चर में वापस जाएं तो इनकैप्सुलेशन का मतलब होता है जी टू कीप थिंग्स पर्सनल, टू हाइड द इम्प्लीमेंटेशन डिटेल ऑफ द यूजर। लेट्स से अगर हम कार की बात करते हैं तो एक कार को मैं देख रहा हूं, कार की इंटरनल फंक्शनैलिटी क्या है, मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है। लेट्स से अगर मैं एक स्मार्टफोन को देखता हूं तो मैं स्मार्टफोन के सिर्फ फीचर्स देख सकता हूं, उसको इंटरनली टेक्निकली उसको कैसे बनाया गया, क्या क्या इक्विपमेंट्स लगाया गया, इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। ये यूजर से क्या होते हैं, हाइड होते हैं। इसी तरह इनकैप्सुलेशन का मतलब होता है कैप्सूल। अगर आप मेडिसिन की एग्जांपल लें तो एक कैप्सूल लें, उस कैप्सूल के ऊपर आप देखें एक रैपर होता है, कवर होता है, उसके अंदर कुछ पाउडर होता है, कुछ मटेरियल होता है, जो कि एक आम यूजर से क्या होता है, हिडन होता है। तो इनकैप्सुलेशन का मतलब होता है जी वी आर हाइडिंग द इम्प्लीमेंटेशन डिटेल्स ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द यूजर।
सिंपली मींस बाइंडिंग ऑब्जेक्ट स्टेट यानी उसकी फील्ड्स को एंड बिहेवियर मेथड्स टुगेदर। तो हम उसकी स्टेट को, उसकी फील्ड्स को और उसके बिहेवियर को, मेथड्स को हम क्या करते हैं, बाइंड कर रहे हैं यूजर से। मेक द इंस्टेंस वेरिएबल प्राइवेट सो दैट they cannot access directly from outside the class। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट, आप सिर्फ अपना रजिस्ट्रेशन नंबर देख सकते हैं, अपना रिजल्ट देख सकते हैं इकरा यूनिवर्सिटी की IULMS के ऊपर। कोई और स्टूडेंट आपका रिजल्ट, आपका अटेंडेंस का स्टेटस नहीं दे सकता। उनसे ये चीज़ें क्या इरेलीवेंट है, कैसे किए गए हैं, ये सारे का सारा नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेशन का काम होता है, वो करते हैं। अब इसको हम एग्जाम्पल में कैसे कर सकते हैं, तो इनकैप्सुलेशन को हम कोड के अंदर कैसे अचीव कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैंने यहाँ से स्टार्ट में एक वर्ड रिमूव किया था जो कि मैंने नेम के साथ रखा था, लेट से इंटीजर के साथ में रखता हूँ, और यहाँ मैं वर्ड यूज कर लूँ अगर प्राइवेट, तो एक्सेस मॉडिफायर प्राइवेट। अगर मैं प्राइवेट लिख दूं तो इसका मतलब ये हुआ इस क्लास ए के अंदर एज को मैंने क्या कर दिया, प्राइवेट कर दिया। ये सिर्फ और सिर्फ क्लास ए के अंदर ही एक्सेस होगा, इवन इसका चाइल्ड इसको एक्सेस नहीं कर सकता। हालांकि क्लास बी और क्लास सी इस एग्जांपल के अंदर इसके चाइल्ड हैं, ये दोनों इस पर्टिकुलर एट्रीब्यूट एज को एक्सेस नहीं कर सकते। दिस इज इनकैप्सुलेशन, राइट। अगर हम इनको कुछ ऐसा रखें कि लेट्स से क्लास ए की दो चाइल्ड है, एक क्लास बी और एक क्लास सी, हम चाह रहे हैं कि हमारे प्लस क्लास ए तो एज को एक्सेस ना कर सके, तो मैंने प्राइवेट लगा दिया। लेकिन क्लास सी जो कि क्लास ए का अनदर चाइल्ड है वो एक्सेस कर सके, तो वो फिर हम मेथड यूज करते हैं उसके लिए। उन मेथड्स के नेम्स हैं गेटर एंड सेटर। ये आप अपनी लैब के अंदर परफॉर्म करेंगे। सो यहाँ हम एंड करते हैं। होपफुली सारे कॉन्सेप्ट्स हमने डिस्कस किए और मैंने कोशिश की कि सारी चीज़ों को समराइज करके आपके सामने प्रेजेंट किया जाए। स्टिल अगर आपको कोई क्वेरी है, कोई इश्यू है, कोई चीज़ समझ में ना आए, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं थ्रू माय email address on WhatsApp, which is given to you people already. Thank you very much. Have a nice time. Hope to see you in coming class.